I will briefly spend some time on these active stocks, assuming that you have never seen it before or you don't know what it is. Now, active stocks is a column where there are several sets. So, for today, I want you to concentrate only on these two: well set bull, well set bear. अच्छा, ये वेल सेट बुल में थोड़े स्टॉक्स आएंगे, ये वेल सेट बेयर में थोड़े स्टॉक्स आएंगे। आज बेरिश दिन है तो बहुत बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे, राइट? सो जिस दिन बुलिश है उस दिन वेल सेट बुल में बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे। ओके, तो ये दो लिस्ट पे आप कंसंट्रेट करिए। अच्छा, ये दो जो लिस्ट है, मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, दीज आर नॉट टॉप टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स ऑफ द डे। दे आर नॉट। ओके, this is the special list that we have created using certain algos that we have coded into our system. This is something which picks up where there is a trend. All right, so ये ट्रेंड जहां पर है वही स्टॉक यहां पे आते हैं। तो इसका क्या फायदा, जहां पर ट्रेंड आ चुका है और वेयर द ट्रेंड हैज टेकन होल्ड, वहां पर चांसेस ये है कि वो ट्रेंड बने रहेगा। ओके, तो अगर ट्रेंड बने रहेगा तो उसमें ज्यादा कमाई की उम्मीद आप रख सकते हैं। इफ द ट्रेंड इज कंसिस्टेंट एंड इफ द ट्रेंड होल्ड्स, you can expect to make more money than otherwise. So wherever else, supposing you are buying and selling mostly the big gainers of the day, big losers of the day, yes, you may make some money there also, because after all, that is where the market attention is for today. But the stocks which you are getting here are the ones which are getting into a confirmed trend. Now, so that is well said bull is all uptrends and well said bear are all downtrends. अच्छा, अभी आप देखिए, on a bullish day you'll have lot of green stocks. Today what is happening, आज आप देखिए, there are only few green stocks and there are a whole lot of gray stocks. Now this is a second feature that we have built into this particular uh, aspect of or analytical aspect, that when the bullish trend loses its strength, it will then shift from a green shading to a gray shading. अब इसका फायदा क्या? Let's say you were holding Paytm, which is here. I hope everybody can see Paytm. Now there is a 8 written there. उसके बारे में बाद में बात करता हूं। तो ये Paytm है। Paytm was in green and today Paytm has moved to gray. Paytm was in green till yesterday. Most of these were in green till yesterday, and many of them have moved to gray. Some of them may have moved to gray yesterday also. Now, if they continue to lose their strength, bullish strength, they will get out of the list. But before getting out of the list, they will first go into gray. So now, if you have taken any trade based on this well said bull list, and that shifts from green to gray, इट इज अ सिग्नल फ्रॉम द मार्केट कि पहला आपका ट्रेड के बारे में चौकन्ना हो जाओ, नंबर वन। उसमें आपको कुछ प्रॉफिट बना हुआ है तो उस प्रॉफिट को बांधो। अगर इट इज इन एंड अराउंड योर प्राइस एंड यू वांट टू थिंक अबाउट एग्जिटिंग इट, यू एग्जिट। ऑल दीज थ्री थिंग्स आर बीइंग टोल्ड टू यू बाय दिस, सो योर डिसीजन मेकिंग बिकम्स इजियर। हमने क्या बताया आपको? नियो ट्रेडर इज अ डिसीजन असिस्ट टूल। आपको डिसीजन लेने का मदद करेगा नियो ट्रेडर। इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूशन फॉर योर ब्रेन, प्लीज रिमेंबर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमको भेजा नहीं चलाना है, आप हमको सीधा सीधा बोल दो। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो देर इज एंड आपको सिर्फ डे ट्रेड करना है तो देन यू गो टू और let's say our day trading page. In our day trading page you have all of these, many, so many of you have seen this page and many of you probably also use it. In that page you will get all of these long, short, whatever
and then you will get your T1, T2, T3, you will get your entry, you will get your SL. No brains required, no analysis required, nothing. This is for the day. End of the day, आप अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे, that is your call. आपका इच्छा अनुसार वो होगा. अदरवाइज दीज आर ऑल लार्जली क्लोज ड्यूरिंग द डे. तो आज का आप देखेंगे अगर इधर कुछ है, in this page, if you see, there is one exit, there is two SL mets, and then there are a whole lot of T1 met, T2 met, and T3 mets and all that. Okay, so this is what you do. It is there for equities, it is there for options also, and so on and so forth. You got your multi-day play, you have your positional play, you have your investment play. These are all for people who do not have any idea about technical analysis, about trends, and about all these things. बट जिसको कुछ मॉडिकम ऑफ आइडिया है कि ट्रेंड नाम का कोई चीज है जिसके कारण मार्केट चलते रहता है, तो उनके लिए ये स्पेशल बनाया हुआ है. सो पर्टिकुलरली जो टेक्निकल एनालिस्ट है, जो चार्ट्स पे एक नजर डालते हैं दिन में, वो लोग को ये एक्टिव स्टॉक का ये जो सेट ऑफ स्टॉक्स है उसको फॉलो करने से बहुत फायदामंद रहेगा. तो मेरा सजेशन ये है कि तो आप इसके साथ जुड़े रहिए. नाउ फॉर एग्जांपल, विच वन टू सेलेक्ट टुडे. अब यहाँ पे देख लिया द होल थिंग इज बेरिश, तो ऑब्वियसली अपने को क्या करना है, वेल सेट बेयर में जाना है. वेल सेट बुल को आज इग्नोर करना है, क्योंकि मार्केट किस दिशा को सपोर्ट कर रही है, बेरिश. सो व्हाट इज द सिचुएशनल अवेयरनेस वी हैव, दैट इज दैट टुडे द मार्केट कॉन्टेक्स्ट और द सिचुएशन इज बेरिश. अच्छा, उसके अंदर ट्रेंड किस चीज में है? ट्रेंड ये सारे स्टॉक्स में है. ट्रेंड इज मोर अ कॉन्टेक्स्ट इन विच सिग्नल्स आर अराइजिंग. सिग्नल क्या है? ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कोई कैंडल पैटर्न है, कोई मूविंग एवरेज है, कोई ट्रेंड लाइन है. ये सारे चीज जो है वो सब सिग्नल्स है. बट वो सिग्नल्स जो है किस कॉन्टेक्स्ट में उभर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. तो एक सिचुएशनल अवेयरनेस आपको यहां से हो गया कि मार्केट की सिचुएशन आज है बेरिश, और एक ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट इधर आ गया, क्योंकि दिस इज ऑल स्टॉक्स विच हैव बीन टेकन फ्रॉम अ ट्रेंड पर्सपेक्टिव. ऑलराइट, अगेन मैं ये डिस्टिंक्शन बना दूं कि ये आज का बिग विनर्स बिग लूजर्स नहीं है. वो बिग विनर बिग लूजर में क्या है, एक ही क्राइटेरिया है. वो कौन सा है? प्राइस इज द क्राइटेरिया. प्राइस इज द क्राइटेरिया, मीनिंग आज का प्राइस कल से अधिक है तो ग्रीन में है, आज का प्राइस कल से कम है तो इट इज इन द रेड. तो दैट इज अ वेरी वेरी सिंपलिस्टिक वन. ऑलराइट, ओके. सो SK Malik ji, kindly explain about well set scores. I'm coming to that, Malik ji, just in 1 or 2 minutes. First, I'm explaining what is there and how to see this for those who may not have seen this at all. All right? Okay. So now you should, because the situational awareness is telling us to be bearish, we should go to well set bear. अब वेल सेट बेयर में आया तो वहां पर क्या दिखे? नाउ यू आर सीइंग वेरियस नेम्स एंड देन यू आर सीइंग अ नंबर. दिस नंबर, व्हाट यू आर सीइंग हियर इज द एज ऑफ दिस सिग्नल. मतलब अभी यहां पर एशियन पेंट है 7. Asian Paint 7 means that the bearish signal in Asian Paints came 7 days before. मतलब 7 दिन से लगातार एशियन पेंट में बेरिशनेस है. अब ये क्यों मैंने लगाया? ये BL में स्कोर देखिए, इट इज ओनली 1. मतलब वो आज की एंट्री है, आज. अभी ग्रासिम में 3 है, ये 3.1 के बारे में आता हूं मैं. और आप देखते चलिए यहां पर यू हैव, आई थिंक, इनफीज देयर 3, ITCs देयर एज 4. मतलब these are all signals which have emerged 3 days ago, 4 days ago, 5 days ago, 7 days ago.
अब एक स्टॉक यहां पर आपको मिलेगा HCL टेक, ये देखिए HCL टेक 13 डेज, 13वां दिन तक अभी बेरिश चल रहा है. यू नो हाउ मच प्रॉफिट हैज अक्रूड इन दैट 13 days? The profit which has accrued is about 12 to 15% from the time new trader signaled you that this is a bearish stock. Result तो ठीक ठाक आए, nothing to complain about in HCL Tech compared to I think TCS, which came on a Friday evening, and HCL Tech came in last Monday morning. Everybody said, okay, HCL Tech is not bad, ये वो, but things could have been better. But what did the market do? Market just plastered HCL Tech. Now why? क्यों, किसने बेचा, कभी बेचा, हु केयर्स यार. अपने को क्या करना है, अपने को तो रुपया कमाना है बॉस, इस पे ध्यान रखो आप. और ये जो वेल सेट बुल बेयर का लिस्ट जो है ना, और उसका एजिंग स्कोर जो है, वो आपको बड़ा पैसा बनाने का मदद करेगा. वरना तो आप छोटे छोटे चींटी की तरह कुछ पैसा खाते रहते हैं, और जब भी नुकसानी होता है वो बड़े बड़े हाथी की तरह जाते हैं. दिस इज नॉट गुड इनफ. We must change and we must start, or we must enable ourselves to make bigger money. And that is the objective of designing this active stock, well said bull, well said bear. ये टेकिंग आउट बुल एंड बेयर, उसके बारे में मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा. दैट्स अ डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट टेक. बट यू कॉन्सेंट्रेट हियर नाउ, वेर एवर देर इज अ वन, ओके, वेर एवर देर इज अ वन. अभी एक स्लाइटली चेंज वर्जन आएगा इसका, वेयर आई एम प्रोवाइडिंग यू विथ अ सॉर्टिंग फैसिलिटी हियर. सो दैट सॉर्टिंग फैसिलिटी विल बी सॉर्ट बाय स्कोर, मतलब डिसेंडिंग सॉर्ट. तो पहला HCL टैग आएगा 13, फिर कोई 10, कोई 9, 7, 8, 7, वैसा वैसा वैसा. It will allow you to sort by alphabetical name wise if you want, so that searching can be easier. Okay. Cholafin is at 1. Now, if you go over to your charting software or your trading terminal, you will see how much gain or loss has happened to Cholafin. If Cholafin is in here, maybe it is in here, so we can check that also. I will type here Cholafin. Okay. Cholafin is right here, and Cholafin is today 3.09% down. So what, like that, there will be so many. Now in the next version which will come, the 3.09 will also come in here, so that you don't have to do the search कि आज कितना परसेंट की लॉस हुआ. So 3.09%. So Zaira, now it is about hour and a half since the market has opened. But in the morning, let's say Cholafin was here with a score of 1. Yes, ये तो कल रात को ही decide हो जाता है. This is not decided today after the market opens. That is an advantage I'll talk about subsequently also. Let's say you have 7 items all with a score of 1. Now, what is the score of 1? That means all these are new entrants into the well set bear list today. Similarly, on well set bull, whatever is score of 1 has entered into the list today. If it is score of 2, then it has entered yesterday. It still remains in the list today, so it will become 2. And like that, if it will keep on increasing. So where the trend is intact, the score will keep increasing. मैंने बताया आपको HCL Tech score of 13. That means HCL Tech has been in a bearish trend for 13 days. So if I, for example, go to the chart of HCL Tech, right, and draw HCL Tech chart. Now look at that. Look at the tremendous decline that HCL Tech is, and even today it is down. So this is the advantage. Now, where is the big money made? The big money is made by shorting this and holding this. The big money is made by going long here and holding it till here. But what is coming in the way of doing it? What is coming in the way of doing it is our fear that
the trade will go away from you. The trade will take away your profit. But this may happen to you if you are playing those random days, days winners and days losers. Because that is taken on a very limited factor, price gain over yesterday. Whereas again, I am repeating, well said bull and well said bear are taking trend elements into them, so they will not change so quickly. अच्छा, इधर bearish में देखिए, there was something which was bearish earlier but which have now turned gray, and these two are Glenmark Pharma and Phoenix Limited. तो चलिए ये ग्लेनमार्क का देखेंगे. ग्लेनमार्क आज के मार्केट में ग्लेनमार्क, व्हाई इज इट गॉन टू ग्रे? अभी आप देखिए ग्लेनमार्क में इट वाज एट अ स्कोर ऑफ 2, तो ये कुछ 2 दिन से गिर रहा है, राइट? फिर उसके बाद देखिए ग्लेनमार्क वेंट साइडवेज. अब आप ग्लेनमार्क में जाकर के देखेंगे, इन पर्टिकुलर आई विल शो यू हियर एंड एक्सप्लेन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो. There is a decimal point which you will find in many. There is 2.1. When it is 2.1, it means that the stock fell down 2 days and went 1 day sideways. मतलब आगे और गिरावट नहीं आई. So if you see here, इरिडा में क्या दिखा रहा है? 2.3. मतलब 2 दिन की गिरावट हुई और 3 दिन से साइडवेज है. So if you see here, IRIDA, Indian Renewable Energy, अब यहां तक गिरावट हुई ना, गैप से नीचे आया, तो this would have come into this lead, and then it actually fell here, then it went again sideways and again fell. So in these two, the score was recorded as 2, right? And then look at that, 3 days it went sideways without really falling very much. So this is another kind of warning that the downtrend is not continuing, but it is not erased. आज अगर आप देखेंगे तो इरिडा हैज स्टार्टेड फर्दर डिक्लाइन. तो 99% ये अगर एंड ऑफ डे तक रिवर्स नहीं हो जाए, ऐसे ही रहे, तो ये क्या, सॉरी, इरिडा, if it doesn't reverse by today evening, then IRIDA score will change from 2.3, which is here. कहाँ गया भाई IRIDA? IRIDA we saw somewhere here. ये रहा IRIDA. 2.3 इधर जो दिखा रहा है, that will increase to 3. So this is a very important thing कि इफ यू आर वॉचिंग दिस डेली, आपको ये पूरा टाइम देखते रहने का कोई जरूरी नहीं है. आपको दिन में कितना स्टॉक चाहिए? 1 स्टॉक चाहिए, 2 स्टॉक चाहिए, वो भी ट्रेंडेड स्टॉक चाहिए. अब मैं आपको ट्रेंडेड स्टॉक दे रहा हूं ना यहां पर, आपको मार्केट के बारे में बता रहा हूं यहां पर, और मार्केट अभी भी देखो 73% एंड 13%, 86% तो 87% तो बेरिश ही है, तो कोई चेंज नहीं है. यहां पर सारे लाल है, यहां पर सारे लाल है, तो ये तो अपने को यहीं पे रहना है. यहां से आपको स्टॉक चुनना है. इरिडा 2.3 है. अब तो कोई ना कोई चार्ट तो देखते ही रहेंगे दिन में. यहां से लेकर के अपने चार्ट में जाइए, चार्ट से यहां मत आइए, बिकॉज चार्ट देखते देखते सारा दिन ढल जाता है, आपको कोई नाम ढंग का मिलता नहीं है. अब इधर देखो, इरिडा जैसा जो नॉर्मल ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, उसमें एडवांस वार्निंग या एडवांस सिग्नल अपने को मिल गया, सेइंग दैट इरिडा which was 2.3 and shifting and still in the bearish list, today it is continuing bearish. So now tomorrow the score will actually increase to 3. Every time the score increases, you must hold on to that stock. आपको हमेशा 3 बजे एक डायलमा रहता है ना, सेल्फ टॉक, कि भाई इसको रखूं या ले लूं, प्रॉफिट बांध लूं या कल पे लेके जाऊं. ये जो डैशबोर्ड है इसका, यहां से आप डिसीजन ले सकते हैं. यहां पर स्कोर अगर बढ़ती है और द डे एंड्स वीक, उसको जरूर कैरी करिएगा.
नहीं है तो देखिए वो HCL टेक में 2% में भी अच्छा प्रॉफिट था, 4 में भी अच्छा प्रॉफिट था, और 6% में भी अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन वो तो 12, 13, 14% दे दिया आपको। ऐसा आपको एक ट्रेड चाहिए पूरा महीने में, दैट्स इट, यू नीड जस्ट 1 10% हिट blockbuster in your portfolio, and then the rest of them can be 1%, 2%, and you will still make decent amount of money. But you must enable yourself to get it. Ab Asian Paint, everybody is saying good stock, good stock. Of course, a good stock, blue chip stock. किसने आर्ग्यू किया? आज के तारीख में भी पेंट सेक्टर में लीडर है, लेकिन स्कोर इज 7। स्कोर इज 7 मतलब 7 दिन से तो ये घट रहा है। किसमें हिम्मत है कि एशियन पेंट को बेच करके 7 दिन उसको होल्ड करे? किसी में भी नहीं होता, बोले यार एशियन पेंट है। बट इधर देखिए यहाँ पे 7 दिन, आज आज को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 समवेयर हियर, मतलब यहाँ पर कहाँ उसका सिग्नल आया हुआ है? ये सब साइडवेज गया तो वो इट वुड हैव काउंटेड इट एज अ डेसिमल, सो एक्चुअली योर सिग्नल वुड हैव कम समवेयर हियर। तो इफ योर सिग्नल वुड हैव कम समवेयर हियर, then you just imagine this was at a price level of about 74, let's say 74.40 or something, और 74.40 वाला चीज आज इट इज ट्रेडिंग एट व्हाट? फ्रॉम हियर टिल हियर, अभी आज सवेरे तक तो इसमें 3.5% आ गया था, आज का आप अभी लेंगे तो इट इज अबाउट 4%। Now 4%, and that is about how much? It's about 100 rupees already. It's now 73.40. From 74.40 to 73.40, it's 100 rupees. In stocks like Asian Paint, people are happy to take 10, 20 rupees and go out of it. So take 100 rupees and it is still not saying it is over. Who knows how far it will go. But as long as Asian Paint is in this bearish list, you should stick with the short position in Asian Paint. If Asian Paint wants to warn you, Asian Paint will get into the gray list. Please understand that. If Asian Paint wants to warn you that maybe I'm done with the decline, it will get into the gray list. अच्छा, HCL टेक मुझे लगा जब मैं इसको ट्रैक जब कर रहा था, जब भी वो 10, 11, 12 हो गया था, तो मैंने कहा यार अभी इन्फी का रिजल्ट आ रहा है, कोफोर जा रहा है, वेनेसडे इज लोडेड विथ ऑल द आईटी नंबर्स, तो शायद ऐसा हो जाए कि इफ दोज रिजल्ट्स आर गुड देन इट माइट प्रोड्यूस अ रैली फॉर द आईटी, सो मुझे सावधान रहना चाहिए HCL टेक का शॉर्ट में। तो आई वॉज रेडी लुकिंग फॉर HCL टेक टू मूव इन टू द ग्रे, बट हुआ क्या? हुआ तो कुछ नहीं। Neither Infi could change matters, neither could the others change matters. So HCL Tech continued, and it is still continuing. Now IT is not really covering itself with any glory today. आज अगर आप जाकर के वेल सेट बुल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? Do we have any IT name? You got OFSS. Why OFSS in the green? Because OFSS came out with results which were far better expected than the market. They actually delivered decent numbers, so that's why it is up. But you see here, none of the others are really in the green. That means Coforge not still in the green, Persistent not in the green, Emphasis not in the green, Tech Mahindra not in the green. Nothing is in the green. तो वहां पर कोई पॉजिटिव ट्रेंड है ही नहीं. नो इन्फी, नो TCS, नो HCL Tech, none of them. एक OFSS से क्या हो जाएगा आईटी इंडेक्स का? अगर अभी आज कल ट्रम्प साहब ने कुछ बकवास करके गया है कि भाई यू शुड स्टॉप हायरिंग पीपल फ्रॉम इंडिया, अगर ये वाकई कुछ हो जाए ऐसा तो क्या हो जाएगा ये सब लोगों का? सो दिस मैन ट्रम्प इज स्टिल ही स्टॉप्स बेलोइंग लाइक दिस अबाउट वेरियस मैटर्स, और मार्केट्स आई थिंक आर dull for that as a main reason. But anyway, getting back here, till this changes, we don't want to go and trade anything. अच्छा, अभी आपके पास समझो कोई ठोस समाचार है, लेट्स लीव द सेलिंग थिंग और लेट मी जस्ट कंप्लीट व्हाट आई वाज सेइंग देयर, सॉरी। तो अगर आपको यहां से वन वाले में एंट्री करना है जो आज के नए एंट्रेंस है,
So then look at what has moved the most at the time that you're checking this out. Let's say you're checking this out at 9:20, 9:25. सवेरे सवेरे चेकअप कर लीजिए. 9:20, 9:25 को आके आप देख लीजिए. अभी क्या देखा था अपन ने? चोला, right? Chola was something which was here, and Chola Fin we also saw was about 3.09%. Unless Chola opened with a big gap, it might have started at 1% down, 2%, and all that. So if the aging score is the same, then you choose the stock which has moved the most in that direction for today. If let us say now this is at a score of 2, or SJVN, right? That is at a score of 1, and we took IGL at a score of 1. Now I don't know how much they have moved between the two. If SJVN has moved 3% down and IGL has moved only 1% down, you choose SJVN, because that is where the market is interested in selling and shorting, and the stock is going lower. So the probability is that this stock will work better. Acha, probability is already high that they are going to go down. Probability that they will keep going down lower today may be there, but probability that they will keep going down on a consistent way is higher. Now we want trended stock so that we can carry it forward 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day, and get a larger amount of money out of it. Clear? This is what we should be doing, right? So now on the score matter, again, S.C. Malik is asking, could you please guide what is the ideal well set score to enter the trade? Sir, there is no ideal well set score. This is not some rating based on the trend strength. Please understand. This is just saying that the signal is 1 day old, 2 days old, 3 days old, 4 days old. Okay, please get that clear. ये कोई RSI की रेटिंग नहीं है, ये कोई ADX की रेटिंग नहीं है, या कोई बॉलिंगर बैंड की रेटिंग नहीं है. ये सिंपली कह रहा है कि SJVN का जो सिग्नल जो अंदर कोडेड है वो सब एक साथ आकर के बेरिश सिग्नल दिया है आज. So it is being featured in this list for the first time today. So if you see what I said about Asian Paint, that has been running for 7 days. Now, if you want, you can trade stocks which are fresh. जो अभी 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 नया तवे में गिरा हुआ है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो. आप नंबर 2 में आप स्कोर में ट्रेड कर सकते हो. मतलब वो ट्रेड कल शामिल हुआ लिस्ट में एंड एक दिन और बरकरार रहा, तो यू वांट टू ट्रेड स्कोर 2 अंडर द कंसिडरेशन दैट it has come into the list and it has survived in the list for 1 more day. So that is the other way to take it, right? So if I have to answer your question here, then the closest I can answer, Ravindra Gupta, what denotes the number? I have just spent 30 minutes answering that. So if you join late, it's too bad. You'll have to go back and see it or ask our team. I'm not going to repeat all of that again. So coming back to Mr. Malik's question, if you must choose between the scores, then you start with those which are number 2, right? And if the number 2 stays on for the day, that is the stock, how can you gauge that it will stay on for the day? You look at the chart of that stock towards the end of the day. ठीक है, 3 बजे 3:15 बजे वो चार्ट को देखिएगा. If that stock is finishing near the low, ये अपन बेरिश स्टॉक के बात कर रहे हैं ना. If the stock is finishing low, जैसे एशियन पेंट में आपको बता रहा था, एशियन पेंट इज फिनिशिंग नियर द लो ओनली ना एवरी डे. अभी कल इट फिनिश्ड हायर बट इट डिडंट एग्जिट फ्रॉम द लिस्ट, तो आपको आज उस पे स्टॉप लॉस लगा सकते थे, बट आज तो नीचे ही ये है कल का बार, सॉरी. तो कल भी इट फिनिश नियर द लो, डे बिफोर इट हैड फिनिश्ड हाई, बट आप फिर थोड़ा चौकन्ने रहते कल मॉर्निंग में कि यार ये तो
चल देगा तो फिर शायद वो it might exit the list, but then yesterday it started high and then finished low. So for today, what has it done? It has opened with a downside gap. Let's say it finishes near the low today, Asian Paints, तो ये स्कोर 8 ही हो जाएगा इसका. If it finishes high, let us say it comes up somewhere here by the close, it might be there. It will not exit the list. Exit होने के लिए भी थोड़े criteria है. Just because the closing is higher or lower, it will not change. जैसे मैंने बताया, इसमें ट्रेंड्स है ऑफ मल्टीपल इंडिकेटर्स दैट हैव टेकन एंड जॉइंटेड टुगेदर. उनके जो सिग्नल्स है उसको जोड़कर एक कॉम्पोजिट सिग्नल निकाला है. उस कॉम्पोजिट सिग्नल के दायरे से यहां पर नाम शामिल होते हैं. उस कॉम्पोजिट सिग्नल परसिस्ट करते हैं तो ये सब स्कोर बढ़ते रहते हैं. ये एजिंग स्कोर है. तो इसका क्या मतलब, 7 वाले में मैं सौदा करूं या नहीं करूं? दैट इज अनदर वैलिड क्वेश्चन विल नाउ कम. 1 और 2 का तो आपने बता दिया. व्हाट शुड आई डू विद समथिंग विच इज 7? 7 वाले में आज भी गिरावट है. आज भी इट इज अमंग अ गुड सेट ऑफ लूजर. इट इज नॉट 0.02% डाउन, but let's say it is some, if you take the list of losers, it's a reasonable loser today also. You can take a trade, short trade in that today also. But the only caveat is that जहां पर ये स्कोर बढ़ते 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 जाते हैं, एजिंग स्कोर बढ़ते बढ़ते जाते हैं, आगे चलते चलते आपको स्टॉप लॉस पे चौकन्ना रहना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज एजिंग हो गया तो कहीं ना कहीं जाके वो ओवरसोल्ड हो जाता है वेरियस इंडिकेटर्स में. वो इंडिकेटर्स में जब भी वेरियस ओवरसोल्ड हो जाता है एंड अ कलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स बिकम ओवरसोल्ड एंड देन देयर इज अ प्राइस रिवर्सल, then there will be a turn in this, and that turn will be, first it might go to gray, and if that turn persists then it may go out of the list. Nothing will go from red to green directly. Nothing will go from green to red directly. So well set से डायरेक्ट well set bear में नहीं जाएगा, well set bear से डायरेक्ट well set bull में भी नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने हैं. दैट इज व्हाई आई सेड ये एकदम जैसा मैं उदाहरण मैं बोलूं, एक वेरी क्रूड उदाहरण. एक एक होता है अपना, अच्छा, दाल तड़का, और एक होता है अपना दाल मखनी. दोनों दाल है, दोनों राइस के साथ खाया जा सकता है, रोटी के साथ खाया जा सकता है. दाल तड़का बनाने में कितना समय लगता है और दाल मखनी बनाने में कितना समय लगता है? दाल मखनी टेक्स 3 times more time to be made compared to dal tadka, because dal tadka is a light preparation. Dal makhani is a detailed preparation. Okay, so in the same way, stocks which are in a trend need many things to come together. Then they will become trended stocks, and then they will feature in well set bull and well set bear. So the reason I am spending okay, D Venu says, you said we should check this page at 9:20. Can we also do the same later during the day? See, you can do this, but it does not add new trades during the day. ये भी बात आप समझ लो. It does not go on adding new trades during the day. This is designed to add or delete or modify the trades at the end of the day. तो जो लिस्ट आज आ गया वो लिस्ट इसी में रहेगा. सो ये लिस्ट अभी वेणु जी का क्वेश्चन का आगे थोड़ा लेते जाते हुए मैं आपको इस लिस्ट का एक सुपर एडवांटेज भी बता दूं. ये जो लिस्ट है ना, वेल सेट बुल और वेल सेट बेयर, ये आपको करीब करीब कल के लिए आज शाम को 4:30 बजे से 4:45 बजे के बीच में, वेयर वी डू और फर्स्ट रन ऑफ डेटा रिफ्रेश, वहां पर रेडी हो जाएगा. ओके, फर्स्ट लिस्ट वहां रेडी हो जाएगा. अब ये फर्स्ट लिस्ट और फाइनल लिस्ट में फर्क क्या होगा कि
जब भाव कॉपी आता है, अब भाव कॉपी थोड़ा लेट आता है, भाव कॉपी इज द फाइनल डेटा, राइट? तो देर इज अनदर रन विच इज डन एट अबाउट 9 o'clock। तो अगर आप जल्दी में नहीं है तो आराम से 9 बजे को, रात को ये लिस्ट को देखिए, रात को 9 बजे खाना बिना खा के आराम से बैठिए। देन यू कैन सी व्हाट इज द न्यू एंट्रेंस, कौन से वन में है, व्हाट आर द स्टॉक विच हैव गॉन टू टू, राइट? एंड ऑल ऑफ दोज यू कैन सी एट 9 o'clock एट नाइट। 9 बजे के आसपास रन होता है, क्योंकि फाइनल भाव कॉपी आते आते 8-9 बज जाता है आजकल। तो उसके बाद एक रन होता है। अच्छा, वो भी आप रात को नहीं देखना चाहते हैं तो मॉर्निंग में एक रन होता है। So you can see it in the morning at 8 o'clock also, well, where you will be sure that the Bhav copy has been run. So you can see it at 8 o'clock in the morning or 7:30 in the morning. You will get a final list. So that will be one. So none of them will carry this gray colored stocks. वो क्यों है? क्योंकि ये ग्रे कलर जब आता है जब मार्केट इज लाइव। ओके, मार्केट डिसाइड व्हाट रिमेन्स इन ग्रीन, व्हाट गोज टू ग्रे। अच्छा, तो ये ग्रे कलर कब से शुरू हो गया, शुरू होगा एग्जैक्टली व्हेन द प्री ओपन सेशन स्टार्ट्स। 9 से लेके 9:10 को प्री ओपन है। जैसे ही प्री ओपन सेशन शुरू हो जाता है तब आप एक बार देखिएगा, तो देन यू विल सी one full green was there and suddenly only one strip of green is left, everything else has become gray, which means that today morning this is what happened. We had lots of greens because based on yesterday's data, greens have been calculated. Based on today morning pre-open data, many of them turned gray. Then the actual trading market will happen, and then what is in green may go back to, what's in gray can go back to green, and what was in green can go to gray again. But so gray will come when the market is open, right? तो 4:30 के बाद ये ग्रे वाला आपको मिलेगा नहीं। कल मॉर्निंग 9:03 तक आपको ये ग्रे मिलेगा नहीं। तो आपको पहले से ही तैयारी करना है, एंड दिस इज अ ह्यूज एडवांटेज कि व्हाट आर द स्टॉक्स फॉर टुमारो। लेट्स से टुडे द मार्केट रिमेन्स बेरिश। अब ये अब ये देखिएगा, ये है 70% and this has become 18%. So this has become 88%. We were at 85, 86%. Now this has become 88%. So it has only become more bearish. So more bearish है तो ऐसे ही सारा दिन रहा तो very obviously the red list will be larger. So as the day passes, this ग्लेनमार्क, अच्छा ये केन्स आ गया यहां पर सडनली। अभी आप देखिए ये बेरिश मार्केट में भी केन्स टेक्नोलॉजी विच हैड अ स्कोर ऑफ 5, मतलब 5 दिन से लगातार बेरिश था केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी 5 दिन से बेरिश है, वो आज ग्रे में आ गया। मतलब आज का जो ट्रेडिंग है केन्स का, दैट इज नॉट शोइंग कंटिन्यूएशन। चलिएगा केन्स के चार्ट को भी जाकर के देख लेते हैं। केन्स केन्स टेक्नोलॉजी आज आज देखो, केन्स इज एक्चुअली बिकम बुलिश फॉर द डे। ग्रीन आ गया ना कैंडल। तो फर्ज करो केन 5 days you were down, right? So this is 1, 2, 3, this was also a down day, 4, 5. So somewhere here is where you got your Keynes ka sell signal, and that would have been at 59.70 or 50 or wherever. And then it had a decline till 56.60. So 300 points of decline you got in Keynes. Now just see 100 points, 200 points, 300 points. This is the kind of planned declines, planned gains that you can get if you remain faithful to what signals are coming here. अब जैसे यहां पर उसने बोल दिया कि भाई केन्स इज नॉट बिकमिंग बेरिश एनी मोर, डज नॉट वांट टू कंटिन्यू। तो केन्स में आप अगर देखेंगे
तो Keynes में earlier you would have seen that there, let's say you would have set some stop loss on this, and then you will get, let's say you set it to the previous bars, previous day's high, right? So previous day's high is here, and it's the same as this. So let's say if your stop loss is set here, you're not losing too much of money from your profits. You're still making profits. So if you want, you can set your stop loss here. You can look at it. You can check for some news on Keynes. You can be happy with the amount of profit you have currently. If you have got multiple lots, you can close out part of it and you can trail the balance with the trailing stop. You can do very many things. What you want to do is first become alert that Keynes is not going down today like it was doing so for the past 5 days. एक कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं अपन जब ही मार्केट स्टार्ट्स टू गो इन आवर वे. अब कॉम्प्लेसेंस का equivalent Hindi word I am not able to recollect right now, but I am sure everybody understands what is complacent. Now, this is the biggest advantage that your well set bull, well set bear will warn you against becoming complacent. तो अपन छोड़ देते हैं, बोले यार इसमें तो मंदी ही है, इसमें तो तेजी ही है, और वहां पर पिटाई हो जाती है, बिकॉज देन योर प्रॉफिट सडनली स्टार्ट वैनिशिंग. And when your profit starts vanishing, you want them, you want this to go back so that you can cover it here. अब होना है नहीं होना है क्या पता, that is up to the market. But now neo trader reads the market unemotionally, और जो फैक्ट है वो वहां डाल देगा. अब फर्ज करो फॉर वॉट एवर रीजन केन्स डिसाइड्स कि नहीं ये तो कोई लोकलाइज बाइंग था, मुझे तो घटना ही है, then Keynes will go back to red. If it that whole thing becomes an upper shadow and वो नीचे चले गया, Keynes will go back to red. And if it closes badly, the score will become 6. You understand? So that is how things will go. Acha, will Keynes exit this list? Looking at this chart and looking at the way it is now, it will not exit the list. Keynes का score आएगा कल 5.1, क्योंकि वो साइडवेज जा रहा है. उसका जो डाउन ट्रेंड है थोड़ी क्लियर हो गया. जो चार्ट पढ़ना जानते हैं, दे ऑल कैन सी दैट द डाउन ट्रेंड इज नॉट रिवर्स just because we have a green candle today, right? So it will become 5.1. This is how the scoring changes. And so therefore there are two ways to read it. One is look at the full scores. Okay, जो 2 है, 3 है, 1 है, 7 है, 5 है, वैसा. Those are the better ones to trade in. Because जो 0.1, 0.2, 0.3 है उधर, वो सब साइडवेज जाने शुरू हो गए. जैसे इधर हड़को है 3.1. अभी IEX देखिए स्कोर ऑफ 5. IEX का समाचार कब आया? कल आया. 30% की गिरावट हुई. बट IEX कितना दिन से बेरिश है यहां पर? 5 days. Which means what? If you see IEX, what a great example we are actually getting here, right? Indian Energy Exchange. अभी नियो ट्रेडर ने आपको बता दिया कि IEX, ये तो कल की गिरावट है ना, 30%, यहां से यहां 30% की गिरावट हुई. अब ये है आपका डायनामाइट. Not many people would have sat for 30% gain. Let us be realistic. But look at IEX. Your IEX signal would have come here at about 202 rupees. Neo trader signaled you that IEX is turning bearish 5 days ago. Okay. So 5 days ago comes here. So at around 202 or 203 rupees or something like that, it has said IEX is to be sold. और कल क्या भाव बनाया IEX नीचे में? 132. और अभी भी बेरिश ही है. बट अभी ये 0.1 हो जाएगा कोई. IEX will become 0.1 क्योंकि ये इनसाइड बार है. एंड all of that is happening. This is a response to this big move.
तो जो कल शॉर्ट थे, बोला आज नहीं घट रहा है, वो सब काट रहे हैं। जो वैल्यू सीकर्स है वहाँ वो यहाँ आकर खरीद रहे हैं। नाउ आई एक्स वी आर ऑल रीडिंग कि 11% डालमिया भारत के पास है, सो एंड सो फंड के पास इतना परसेंट है। सो ऑल दोज पीपल आर अफेक्टेड बैडली। उसमें से कितने लोग निकल गए क्या पता। बट यू एंड आई कुड हैव सोल्ड आई एक्स एट 201 rupees and garnered a theoretical profit of 60 rupees on a 200 rupees stock. That's a 30% gain, right? So this is the kind of dream stocks that we know. This was all going lower. तो ये यहाँ पर स्कोर ऑफ 4 हो गया था, और ये फिनिश लोअर है, एवरीडे फिनिश इज लोअर, तो आप उसको पकड़ के रखिए ना। कल का स्कोर बढ़ने वाला ही है, तो कल का स्कोर बढ़ने वाला है तो इसमें मंदी की का इजाफा और होगा या हो सकता है। अगर वो होने वाला नहीं है तो अपने आप से वो बता देगा। सो दिस इज सॉल्विंग ऑल योर प्रॉब्लम्स कि विच स्टॉक शुड आई ट्रेड। क्वांटिटी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल। हाउ लॉन्ग शुड आई होल्ड इट? एज लॉन्ग एज द एजिंग स्कोर इज इंप्रूविंग। अच्छा, when do I get a sign of warning? When it shifts to the gray list. Do I get another warning signal? Yes, when it goes into a decimal. When it goes into a decimal means वो trend थोड़ा halted है, paused है. It is not reversed. It is paused. When it goes to gray, it is definitely halted. ये pause है और ये halt है, दोनों में थोड़ा फर्क है ना, ये दोनों English words है. There is a pause and there is a halt. Right? Amber signal is saying that please pause. Signal amber है, but red signal means halt. Correct है ना? So वैसा this is a pause when you get a decimal, and when it goes into gray it's a halt. और यहाँ पर हॉल्ट करके देखिएगा कि कल मुझे मंदी करना है कि नहीं, मंदी कंटिन्यू करना है कि नहीं। कल का जो पैरामीटर रहेगा उसको एकदम टाइट रखना है। टाइट रखना के मतलब क्या? अगर आपका पोजीशन है तो स्टॉप लॉस को टाइट करिए। आपका प्रॉफिट ऑलरेडी जमा हुआ है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट वो ले लीजिए। आपके पास एक ही लॉट है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो एग्जिट करिए। एनी ऑफ दीज थिंग्स यू कैन डू। दैट इज व्हाट इज द एक्शन कॉल्ड अपॉन एट हॉल्ट। तो मतलब आपको बने रहना है, आपको डिसीजन लेना है, पॉज का डिसीजन लेना है, मतलब उस पर ध्यान देते रहो। उस चार्ट को 3 बार देखो, क्योंकि ये दिन में ये स्कोर तो बदलेगा नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू कीप कमिंग बैक एंड सीइंग दिस। You want to come back and see this only if you have moved out of one stock, okay, or if you are seeing that something has moved into gray. That's it, nothing more, right? That is the only reason to come back. So you need to come and see this only once or twice. You need to come back to this about 5-7 times during the day to see what is the progress of the market. जब तक प्रोग्रेस ऐसा है, तो अभी आप देखिए हल्का सा चेंज हुआ है, 68% एंड 20%। ओप्स नो, क्या चेंज हुआ है? जो 70% लाइट रेड था वहां से 2% निकल गया, लेकिन वो घुसा डार्क रेड में, मतलब वो उसमें और मंदी हो गया। तो टोटल परसेंटेज तो 88 में ही रहा। दैट मीन्स द बेरिशनेस इज एक्चुअली बिकमिंग, overall it is remaining the same, but stocks which are in the loss are becoming worse. So that is what this tells you. यहाँ पे कोई green shoots of anything। आपको फिर भी जबरदस्ती का कोई लॉन्ग करना ही है तो जाके फार्मा में ढूंढिए। अब फार्मा में ढूंढना है तो आप जाइए वेलसेट में, कोई फार्मा मिल रहा है क्या? अपोलो हॉस्पिटल मिल रहा है, सिप्ला मिल रहा है, और क्या है, लुपिन मिल रहा है, एल्केम मिल रहा है। सो देखिए, ऑल योर मैक्स हेल्थ एक मिल रहा है, फोर्टिस एक मिल रहा है। नाउ सी हाउ दिस वर्क हैंड इन हैंड विद व्हाट इज इन द मार्केट। सो न्यू ट्रेडर डैशबोर्ड and active stock
will never allow you to be on the wrong side. I'll repeat that again. It will never allow you to be on the wrong side. और अगर आप रॉन्ग साइड में है तो तुरंत उसको रेक्टिफाई करो, इसके साथ रहो। आई एम गोइंग सो फार एज सेइंग, जो नए नए ट्रेडर्स हैं, जो नए नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पास तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर न्यू ट्रेडर में, धीरे धीरे आगे चलते चलते हर चीज का आपको आइडिया मिलते ही रहेगा। एवरीथिंग इज ऑगमेंटिंग गुड। जो नए हैं उनको ये पैनल और ये पैनल, इसके आगे कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है। ये मेरा शर्त है, ये मेरा गारंटी है। इफ यू जस्ट स्टिक टू दीज टू पैनल्स, योर वर्क विल गेट डन। Naresh Kaushik says, Sir, taking guard, bull, and bear, detailed video, I'll do again. Right? It is, ये वेल सेट बुल और वेल सेट बेयर का एक अंश है वो। ओके, तो स्टॉक वेल सेट बुल और वेल सेट बेयर में आने के पहले टेकिंग गार्ड बुल, टेकिंग गार्ड बेयर में आएंगे, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो में अगली बार करूंगा। एंड हाउ टू ट्रेड दैट, उसको मैं आपको अगली बार बताऊंगा। टुडे आई वांट टू फोकस ऑन वेल सेट बुल, वेल सेट बेयर, राइट। सो टेकिंग गार्ड को आप थोड़ा सा पीछे रखिए, मैं अगली वीडियो में आपको जरूर समझा दूंगा। सो हियर कमिंग बैक, ऑल यू हैव टू डू इज बी हियर। अभी आपको जबरदस्ती तेजी ही करना है तो ठीक है, इधर आपको हियर इट इज लेड आउट, तो आप इधर देखिए, अपोलो हॉस्पिटल 1, सिप्ला 1 एंड लुपिन 1, एल्केम 1। तो मतलब ये सारे आज एंट्री हुए, आज एंट्री हुए हैं, और आज मार्केट इतना मंदा है तो पॉसिबिलिटी है कि इसके जो बुलिश ट्रेंड्स है उसको कुछ हवा नहीं मिले, उसको हवा नहीं मिले तो शायद दे में स्लिप। इधर आप देखिए, फोर्टिस है 5 days अगो, फोर्टिस में तगड़ा ट्रेंड चल रहा है पहले से ही, तो आपको तेजी करना ही है तो जाग करके देखिए आप फोर्टिस में। व्हाट इज फोर्टिस सेइंग? Fortis is actually 5 days up because all these are up, right? यहां तक आया ऊपर, फिर ये 2 दिन साइडवेज गया, फिर ऊपर हुआ, फिर ऊपर हुआ, फिर ऊपर हुआ, आज एक्चुअली साइडवेज हो रहा है। तो फोर्टिस अभी स्कोर ऑफ 5, मैंने क्या कहा अर्लियर, once the score has gone up sufficiently, 5, 7, 10 and all that, then you start looking for evidence of it starting to slow down, because we know कि कोई भी ट्रेंड 3, 4, 5 दिन जाता है फिर थक जाता है। जहां पर ठोस समाचार होता है ना वही चलते रहता है, या जहां पर कोई जबरदस्त टेलविंड है ऑफ द सेक्टर ऑफ द मार्केट, जैसे आईटी सेक्टर में टेलविंड है। आईटी सेक्टर वैसे भी पिट रहा था, फिर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो ये दोनों कंबाइन हो गए, और अभी मेन मार्केट भी पिट रहा है, अभी तीनों चीज मिलके पिट रहा है, तो आईटी सेक्टर में टेलविंड हो गया, तो आईटी सेक्टर में जो खराब है उसको बेचिएगा। दैट्स अ वे टू गो, इट्स अ सिंपल वे दैट यू टेक द सपोर्ट ऑफ एवरीथिंग। मार्केट फर्स्ट, जो अपन ने सिचुएशनल से रीड किया, उसके भीतर अपने पास ब्रॉडर इंडेक्स का था, दैट इज सेक्टर सेकंड, राइट, एंड देन थर्ड। तो ये जो चीज है, दिस इज ऑल अबाउट सिचुएशनल अवेयरनेस। मार्केट फर्स्ट, नो इंटरेस्ट टू गो अप, गुड इंटरेस्ट टू गो डाउन। सेक्टर्स, most except pharma, no interest to go up, so most of them supportive of declines. Declines may be a fall, decline may be profit taking में हल्का सा गिरावट, दोनों डिक्लाइन में गिना जाएगा। ये स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स का काउंट है। अब ये 71% विथ 16%, 87, 88% तो अभी भी सिंग लगा हुआ है। अभी ये था 20%, 20% का हो गया 17%, तो थोड़े जो 3% की गिरावट है वो यहाँ आ गई। ये 68 थी, 68 का हो गया 71। तो अभी जो हुआ है
1 hour has passed since we are doing this video. It's gone on long enough, but it has, the market is now getting out of a strong bearish mood, but it is still in a bearish mood. Where will things become a bit of a relief for bulls? When the 71% starts going down and goes towards 60, then slips below 60, that is when some stocks will start making a comeback. When will that happen? When buying comes at the lower levels. And which stocks buying will come? वहां पर आपको धीरे धीरे, there you will have to go into the heat map and see. ये heat map यूं ही नहीं दिया हुआ है. There you will have to go to the heat map and see. Because this is not going to change during the day. Where will the change come? Suddenly you are seeing this many. ये क्या है? फर्स्ट रो है ना पूरा. अब ये सेकेंड रो में HDFC बैंक खड़ा है 2.1 पे. लेट्स से बैंकिंग में बाइंग आ जाता है लेटर पार्ट ऑफ द डे, और ये HDFC बैंक में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंग आ जाता है और वो कहीं एलिवेट हो जाता है. यहां पर एक आधा कुछ ग्रीन आ जाता है विच एलिवेट्स फ्रॉम अ साइडवेज सिचुएशन. So that is all those things we can see possibly, but then the changes here which are day, they will be visible in the heat map. तो ये पहला पेज का ही मैंने आज वर्णन किया है. You can see that there is substantial amount of information which is there in the very first page. There are 35 pages inside NeoTrader. 35 pages, okay? It's packed with so much information and so many methods and so many ways to do. 35 पेजेस में से 25 पेज तो एनालिस्ट के लिए है. सो अगर आप एनालिस्ट हो तो न्यू ट्रेडर तो आपको इतना मदद कर देगा कि मैं क्या बताऊं आपको. बट आप प्योर ट्रेडर हो तो आपको एक 7 8 10 मेथड तो ऐसे ही मिल जाएंगे जहां से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करने का मौका मिल जाएगा. यहां पर एक चेंजेस मिलेंगे, फिर आपको चेंजेस मिलेंगे यहां पर रोलिंग टिकर में. तो रोलिंग टिकर में आइए, सेलेक्ट ऑल कर दिया, यहां पर देखते जाइए क्या चेंज हो रहा है. अभी तो सारे आप देखेंगे तो रेड 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 ही होगा. देखिए रेड, ऑल रेड, फोर्थ पेज ऑफ रेड. यहां पर कुछ जाइडस लाइफ आया, फार्मा स्टॉक, अपोलो हॉस्पिटल, ये सवेरे सवेरे ग्रीन आया. वो RSI अपसाइड ब्रेकआउट आया. कितना बजे आया ये 25/7 एट 11:17. अभी अभी आया रिसेंटली अपोलो हॉस्पिटल. फिर ये आया मैक्स हेल्थ. व्हाट इज टर्निंग ग्रीन? फार्मा इज टर्निंग ग्रीन. वी सॉ दैट फार्मा इज देयर. ये आया ऑल्सो एट 11:17. तो लाइक दैट यू कैन सी हियर PPL फार्मा, सिंजीन, डाबर. ये पेट्रोनेट एक बाहर से आया. पेट्रोनेट में आज रिजल्ट है. ये रिजल्ट वाला चीज को ध्यान रखिएगा बिकॉज दैट ऑल्सो propels stocks here and there. Petronet has got results today. Torrent Pharma, right? And then what do you get? Syngene you got. So all pharma only improving. Everything else is staying in the red. So you can keep checking front page. रोलिंग टिकर भी फ्रंट पेज पर ही है, तो वहां से आराम से. कल्याण जी पूछ रहे हेल्थ हीट मैप का परसेंटेज कैसे रीड करना है. हीट मैप इज द हीट मैप is actually the price change for the day. Gainers, losers for the day. That is what it is. Gainers, losers for the day. यहां पर कोई विशेष एडिशन नहीं है. IEX is plus 8.43% today. That's all. This is just gainers, losers for the day. इसमें कोई विशेष ट्रेंड नहीं है और खाली डार्क रेड लाइट रेड में हमने दिखाया है विद अ डिस्टिंक्शन ऑफ 2%. ये तो आपको बताया ही होगा while a time of your onboarding. So that's a simple thing. Okay. So these all queries you can any clues for positional trades? Sanjay Shah, positional trades you can take from here, sir. Whatever is improving in this,
इफ द स्कोर इज इंप्रूविंग ऑटोमेटिकली पोजिशनल ट्रेड हो गया कि नहीं? एचसीएल टेक पोजिशनल ट्रेड था कि नहीं? एशियन पेंट पोजिशनल ट्रेड था कि नहीं? रिलायंस है, रिलायंस पोजिशनल ट्रेड है। रिलायंस देखिए आप, वो कुछ स्कोर ऑफ 5 या 6 है। अब देखिए रिलायंस, इसी को तो बोलते हैं ना पोजिशनल ट्रेड। दिस इज व्हाट इट इज। तो वंस यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। अभी पोजिशनल ट्रेड इसीलिए नहीं बन जाता है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ रिलायंस कर लो पोजिशनल ट्रेड, क्या हो जाएगा? 500 रुपया बढ़ जाएगा, 500 रुपया घट जाएगा, समथिंग रैंडम ऐसे। अरे रैंडम में क्यों काम करे? किसी का भी बोली पे क्यों काम करे? मार्केट जो बोल रहा है उसके ऊपर काम करिए ना। और मार्केट तो आपको साफ साफ बता रहा है, नियो ट्रेडर आपको ये सब डिस्टिल करके आपको बता रहा है कि भाई रिलायंस स्कोर इज हाई। रिलायंस है यहां पर, ये रहा रिलायंस। रिलायंस इज एट 8। ऑल राइट, सो डू इट इन दैट। लेट द मार्केट टेल यू which is to be a positional trade. Let nobody else tell you what is a positional trade. कोई भी ट्रेड शुरुआत से पोजिशनल या मल्टी डे नहीं होता। मैं रिपीट करूं, कोई भी ट्रेड शुरुआत से पोजिशनल या मल्टी डे या इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि मार्केट को उसको कंफर्म करना है। आपके मन में है कि मैं इसको 10 दिन कैरी करूंगा, इसको मैं 3 महीना रखूंगा, इसको मैं 1 साल बना के रखूंगा, इसको मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाऊंगा। ये सारे चीज तो आपके मन में है ना। मार्केट को थोड़ी पता है व्हाट इज इन योर माइंड और व्हाट इज द बेसिस दैट यू हैव यूज्ड टू टेक अप दिस पर्टिकुलर पोजीशन। व्हाट विल यू डू विद ऑल द गायरेशंस? आज का गैप का क्या करोगे? जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि देयर वाज नो क्लू दैट द मार्केट वुड फॉल बाय दिस मच एंड रिमेन डाउन। देयर इज नथिंग, देयर इज नो फंडामेंटल इवेंट at all. There is a collection of elements which are all situations, and the collective situational awareness created a context in which all the signals, bullish signals failed and all the bearish signals worked. That's how you must always see market. And that is the reality from day to day to day to day. It will never change. There is a situation, a collection of situation creates a context. There is a context for the market. There is a context for the sector. There is a situation for the market. There is a situation for the sector. सेक्टर के बारे में न्यूज आ जाए तो सिचुएशन फॉर द सेक्टर हो गया, और उसके अंदर जो सब स्टॉक्स है वो सब कर करा के देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट फॉर द सेक्टर, और उसके अंदर सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट हो गया तो देन देयर विल बी अ कॉन्टेक्स्ट फॉर द स्टॉक। स्टॉक में सिग्नल आएगा, उस सिग्नल उस कॉन्टेक्स्ट में, उस सिचुएशन और उस कॉन्टेक्स्ट में या तो आपको 5% का रिटर्न देगा या तो आपको 0.5% का रिटर्न देगा। एंड दैट इज हाउ योर रिवॉर्ड्स गेट डिसाइडेड। सो आवर जॉब इज थ्रीफोल्ड: recognize the situation, identify the context, read the signal, take the trade, manage the trade। ये है ट्रेडिंग का असली सीक्रेट। दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। तो उसमें से 5 में से 4 काम तो नियो ट्रेडर ही कर देता है आपको। उसने कहा सिचुएशन ये है आज का, ये पूरा सिचुएशन दिखा दिया उसने ऑफ स्टॉक्स। इतने सारे स्टॉक्स एक साथ लाल हो गए तो वो कॉन्टेक्स्ट हो गया आज के लिए कि भाई आज कोई तेजी का सिग्नल चलने का उम्मीद बहुत कम है, मंदी के जो सिग्नल रहेंगे वो चलेंगे। तो वो कॉन्टेक्स्ट हो गया आज का स्टॉक्स के बारे में। और तो अपने को जाकर के स्टॉक में खेलना है, कौन से स्टॉक्स? मंदी वाले स्टॉक्स। वो मंदी वाले स्टॉक्स आपको यहां दे दिए वेल सेड बेयर में, मंदी वाले स्टॉक्स तो यहां भी है, बट ये एक पैरामीटर पे है, सिंगल पैरामीटर प्राइस।
6% down, 5% up, whatever, single parameter. This is multiple parameter all jointed together through lots of logic and coding and some bit of artificial intelligence added to it. सो पोटेंशियल किसका ज्यादा है कि ये चलेंगे कि वो चलेगा? दोनों चल सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये चलेंगे। और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी और भी दे दिया बाय गिविंग यू एन एजिंग सिग्नल। उसके अंदर आपको प्रोटेक्शन दे दिया बाय गिविंग यू अ वार्निंग दैट इट इज नॉट ट्रेंडिंग एनी मोर, वो डेसिमल आ गया। उसके फर्दर आपको और वार्निंग दे दिया, बोले यहां पर हॉल्ट आ गया, सावधान हो जाओ। अगर 6 फैक्टर है तो 5 फैक्टर तो इसने सॉल्व कर दिया। अब छठे फैक्टर क्या रह गया? दिमाग आपका। उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसका सॉल्यूशन तो आप ही लाना है। इसके सारे बावजूद भी आपको इस पे विश्वास नहीं आया तो ऑल द बेस्ट, कहीं और आप ढूंढ लीजिए आप आपका सॉल्यूशन। इसके बावजूद भी आपसे मंदी नहीं हो रहा है, अगेन ऑल द बेस्ट, सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ के निकाल लीजिए। इसके बावजूद आप स्टॉक को पकड़ के नहीं रखते हैं एंड गिविंग योरसेल्फ द चांस टू मेक बिगर मनी, ऑल द बेस्ट, बड़ा पैसा कहीं और से बना लीजिए। मेरा तकदीर पैसा लेके आएगा, ओके, ऑल द बेस्ट। जाइए एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करिए, रोज अपना काम करिए। दिस इज ऑल आई कैन सी। बट इफ वी हैव टू कंट्रोल इट टू द एक्सटेंट पॉसिबल, मार्केट को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इफ यू हैव टू कंट्रोल इट टू द एक्सटेंट पॉसिबल, नियो ट्रेडर, उसके अंदर जो ये बिल्ड किया हुआ है, इसका जो लॉजिक बिल्ड किया हुआ है, ये आपको बता रहा है कि आज का क्या सिनेरियो चल रहा है। और ये रोलिंग टिकर ये चलते गाड़ी को दिखाते ही रहता है आपको क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग, राइट? सो इफ यू कीप चेकिंग ऑल ऑफ दीज, यू हैव गॉट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। अभी देखिए एक नया चीज खड़ा हो गया, ऊनो मिंडा। ऊनो मिंडा कुछ खड़ा हो गया। अब ऊनो मिंडा का या तो आप जाकर के चार्ट देख सकते हैं, विच इज वन वे टू डू इट, या आप इधर आ जाइए और यहां पे देखिए इसमें कोई ट्रेंड का इजाफा है या नहीं। इसका ट्रेंड का इजाफा है तो ये वेल सेट बुल बेयर में दिखेगा। वेल सेट बुल बेयर में नहीं दिखा तो टेकिंग गार्ड बुल में तो दिखाना चाहिए, बिकॉज टेकिंग गार्ड बुल, टेकिंग गार्ड बेयर जो है वो वेल सेट के पहले आता है। तो एक सेकेंड, इट इज टेकिंग सम टाइम टू लोड, राइट? तो वहां पर नहीं है तो फिर इट इज अ रिस्की ट्रेड। अब रिस्क लेना है नहीं लेना है वो तो आप पे निर्भर है। व्हाट यू वांट टू डू, यू डिसाइड। आई हैव गिवन यू द मसाला फॉर हाउ थिंग्स आर टू बी डन। और टेकिंग गार्ड बुल में ये सब है, डॉक्टर रेड्डी अगेन, फार्मा, सन फार्मा, जाइडस लाइफ, ओरो फार्मा, सी ऑल दिस, देयर यू आर, उनो मिंडा खड़ा हो गया ना। तो अभी थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं आप, उनो मिंडा उधर रोलिंग टिकर पे आ गया तो यू सी हाउ थिंग्स आर गेटिंग कनेक्टेड हियर। दिस इफ यू मेक इट अ हैबिट, मतलब इसके सिवाय दूसरा कुछ करो ही मत। नया आदत बनाओ, पुराने आदत आपको प्रॉफिट नहीं दिलाया है। ओल्डर हैबिट्स हैव नॉट डिलीवर्ड यू कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, क्रिएट अ न्यू हैबिट। उनो मिंडा रोलिंग टिकर पे आया, टेकिंग गार्ड बुल में आया, अब इसको थोड़ा सा एक दो काम और करना है। अगर समझो 5 टिक मार्क्स लेके आना है फॉर गेटिंग इनटू वेल सेट, तो मैं ऐसा कर दूं कि टेकिंग गार्ड में 2-3 टिक मार्क मिल गए उसको। अब एक दो टिक मार्क और मिलना है, दैट विल हैपन अक्रॉस द डे एंड हाउ इट फिनिशेस, तो उसमें टिक मार्क लगेगा। अगर टिक मार्क लगा तो उनो मिंडा कल एलिवेट हो जाएगा। अगर आपके पास
कोई रीजन है टू बाय उनो मिंडा? आपको अच्छा लगता है इंडिपेंडेंटली, आपके पास कोई खबर है, आपको चार्ट अच्छा लगता है, वॉट एवर रीजन, then you can take a small entry into Uno Minda, right? So you can see this. Sharik Khan has been answered. Okay. अदरवाइज शारिक खान, मैं आपको बता दूं कि रोलिंग टिकर इंट्राडे में मल्टी डे अभी यूज नहीं करिएगा, क्योंकि इंट्राडे में बने रहिए। मल्टी डे का थोड़ा सा अधिक जानकारी होना चाहिए आपको चार्टिंग के बारे में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मल्टी डे ऑफ रोलिंग टिकर इज इंफीरियर टू इंट्राडे, ऐसा कोई बात नहीं। इट इज जस्ट दैट जब आप मल्टी डे और पोजिशनल का काम करते हो तो आपको थोड़ा बहुत चार्ट्स की जानकारी होना जरूरी है। इफ यू आर good experience there, your Sharik Khan says I have a good experience of charts. Wonderful, sir. Happy to know that. Then you can possibly take a look at that also, if what you see on rolling ticker multi-day agrees with what you see on the chart. Please understand that this is a decision assist system. I said it before, I'll repeat it again. This is not a substitute for your thinking. There are 225 stocks in futures option, and there are 2000 stocks which are trading every day. Now, we can't go everywhere, we can't see all the charts, correct? So, this will help you zero in on where some collective signals are happening, where some specific trended thing, जो आप रोलिंग टिकर में भी आप अगर देखेंगे, so it is specific systems which have been put in there. It is not, there is only one price item there. One price item is what? That is price above previous day's high and price above previous week high low, previous day high low. All right. So if you go here and I say select all here for that thing. Now, previous week low broken, previous day low broken. This is the only price thing without too much of analysis. Otherwise, if you see Camaria pivot on a weekly basis is different from a daily basis. So prices day, Heiken-Ashi patterns take certain set of things. We just don't take a single pattern. So there is new trends, trend confirmed, trends halted. ये सब comparative studies है. So that is what will come. RSI is contextual because you can see it in multi time frame, 30 minutes to monthly, right? CPR is also contextual. Now CPR level 1 करते हैं, CPR level 1 is a combination of things which need to happen. So many of them which have been put here are not just price for the day. So when you go from intraday to multi-day and positional and all this need to happen at much higher level. So unless, like I said, if you are good experience with charts and know how to read them, then that is great. Great, sir. Happy to note that it is giving you good results on the basis of RSI on turn up and turn down. So again, multiple pages with multiple techniques. That is what is the hallmark of NeoTrader. Today, what we have covered is what we seeing on the dashboard. And on the dashboard, we have this very, very powerful feature, which is your active stocks, well set bull, well set bear, taking guard bull, taking guard bear, right? If you combine that with the day's changes, if you combine that with the aging score, if you combine that with rolling ticker, other signals, all your requirements will be met. इससे अधिक
एक्टिव ट्रेडर के लिए रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ यू सी वी हैड अ फुल स्ट्रिप. नाउ दैट फुल स्ट्रिप हैज लॉस्ट वन. तो मार्केट में तेजी नहीं आ रहा है, थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग. एक्चुअली यहां से जो एक था वो ड्रॉप हो गया. सो ये आ गया अभी 68 और ये हो गया 22. तो ये हो गया अभी 90%. मार्केट इज नॉट इम्प्रूविंग. तो आपको तेजी करना है तो एक ही झंडा उड़ रहा है, वो है फार्मा की. वांट टू गो अगेंस्ट द ग्रेन, बाय ऑल मींस. बट मंदी करने से आज मार्केट आपके साथ है, सेक्टर आपके साथ है, स्टॉक आपके साथ है, सिग्नल्स आपके साथ है. तो किस दिशा में रहना है ये सबसे अहम बात है. उसके बाद किस स्टॉक में रहना है वो भी अहम बात है. और कहां तक बने रहना है ये भी अहम बात है. ऑलराइट. और ये जो है इसके अंदर एक स्टॉप लॉस आता है, एक टारगेट आता है. आप उसके ऊपर हवर करेंगे तो एक ही चीज मैं बताऊं तो स्टॉप लॉस शुड बी यूज्ड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. स्टॉप लॉस शुड बी यूज ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, जो यहां पर स्टॉप लॉस बताया गया है. ओके, दैट you should remember. Now there is a small error which is coming into the gray that will be corrected by tomorrow, day after. यहां पर ग्रे हो जाए तो एक्चुअली यू आर नॉट सपोज टू यूज दी स्टॉक्स. तो यहां पर उसका जो स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह है उसको आप अभी के लिए डिसरिगार्ड करें. ये करेक्शन जो भी करना है वो हो जाए. ओके. With that, I think we can bring this live session to an end. I hope you had some good learning and your queries were also answered. And we will be doing more of these in the future. And I hope you'll keep attending these. And like I said, we also have the support room. Don't forget to take advantage of that. All right. And post your queries there, ask your questions there. And thanks once again for being part of NeoTrader ecosystem, being part of our family. And I hope we will continue this relationship for a long time to come, and you will benefit immensely from this association. Thank you once again. And until I see you again, goodbye.